Okay, let us start. Am I audible to everyone? Good Yes, morning. ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Okay, so today's lecture is on here. See, we have discussed the derivation of super elevation. What was the formula? How we can design super elevation? Okay, and what we have also derived formula for the extra widening. Now today, what we will do? We will learn how we will how we will place our super elevation, or rather we can say how we will construct our super elevation and extra widening on a horizontal curve practically in the field. Okay, that is called attainment. Okay, that means suppose this was your straight sorry straight road. Okay, we are providing horizontal curve when we need to change our direction. That means when we are changing our alignment, at that time we must provide some horizontal curve. So one curve will be here. Okay, so this is the this is your end of the straight road. Okay, there will be one transition curve. Transition curve means what? We will now slowly proceed from straight to circular curve. Okay, from straight road to circular curved road. So we cannot provide the circular curve abruptly. Okay, we have to provide it gradually. So in between these two type of the roadway, that means one is straight road and another is the curve road, there must be some another curve. Okay, that curve is your transition curve. Suppose this is your transition curve. Okay, here is your straight road, here is a transition curve, and this is your circular curve. Okay, your curve starts from here. That means from here your radius is start. Okay, this is the radius of the curve r. Now at this region what happens? Your circular curve will end. Now from here what starts? Transition curve will start until we reach straight road. Okay, so in between this straight road and your circular curve, one curve will be there. Okay, that is transition curve. We will learn about this also. We have to design this also. Transition curve also we must design. But here I am discussing why, because here it means that we are now gradually changing our alignment from straight to a circular line. Okay, circular alignment. So from here in the straight road should be there any super elevation or extra widening? Should we provide in the straight curve? There should be no extra widening and no super elevation on the straight road. We are providing super elevation and extra widening only on the circular curve road. Okay, only this section. But if we suddenly raise our elevation, suppose this is the outer edge and this is the inner edge. Okay, we can't raise. Super elevation means what? We have to raise our outer edge. Okay, we have to elevate our outer edge, right? We have to increase the height of the outer edge. So we can't do that we can't do that abruptly. That means here it was no super elevation, but suddenly you provided, you raise the you raise this outer edge of the pavement. Suppose this is the rise in the height of the outer pavement. Okay, outer edge of the pavement. So what happens when you are going from here, moving from here, and suddenly you feel some jerk, right? Because there is sudden increment in the height of the outer edge. So it will provide accident, it may cause accident, it may cause some discomfort also. So what we have to do? We will provide this super elevation or extra widening, whatever, we are increasing the width of the pavement gradually. That means slowly your height of the outer edge will start to increase from here. Okay, slowly it will increase, then it will reach maximum whatever value that is required, that we have designed. Okay, that value we will reach here. Then from here to here it will be constant, that value throughout the circular curve it will be constant. And again from transition curve what happens? This is the maximum super elevation value. Now slowly when we reach to the straight road, what happens?
this will start to reduce. We have to reduce the height of the we have to reduce the elevation of the outer edge gradually. Okay, so this is called what? This is the attainment, how we are proceeding, how we are practically placing our super elevation or extra widening on the road. So this is called what is it? This is called your attainment. So see here super elevation was what? Here your super elevation or the outer edge were at the same level of the straight road. That means your super elevation is 0. Okay, now slowly it is increasing from 0 to its maximum E value. Okay, and throughout this curve it will be E only. Now from here transition curve, again your super elevation will, when you reach here at the straight road, your super elevation value will be 0. Okay, now how we are providing from 0 to E, that we will learn today. Okay, this is called your attainment of super elevation. Similarly, you replace this super elevation with extra widening. Okay, here instead of E, just put WE. Same way also we are increasing the width of the pavement. Okay, we have to increase the width gradually, not like that you are moving like this and suddenly on the curve it will be like that. No, it should not be like that. Okay, it should increase like this. See, it was your curve. Suppose your curve is here, then it will increase gradually. Okay, so it will increase gradually like this. See, this width is more than this original width. Okay, so how we are providing this one, that is called attainment of super elevation or attainment of extra widening. Okay. See, this is how we are providing the super elevation. Okay, I will, after this class I will give you one animation video. Please go through that video. Okay, then you will visualize practically how we are providing super elevation. Okay, see here, here your outer edge was what? This outer edge and inner edge are at the same level. See, 0. Now slowly it is increasing. Okay, here it becomes what? It becomes suppose half of the super elevation. Now when you reach the curve, it attains full super elevation. Now throughout the curve it will be full super elevation. Now here from here it will start to reduce. Okay, this height will start to reduce and it will attain 0 at the end of the this one straight curve. Okay. Similarly, extra widening also we are providing like this. See, from here it starts a straight curve. This is transition. Transition curve means what? You are transition. You are changing your state. Okay, this is the transition state. That means you are changing from straight to curve. So at the starting everything will be 0, and at the end of the transition curve you must attain full super elevation as well as you must attain full extra widening. Okay, then it will remain constant throughout the circular curve, and again from here it will start to reduce till you reach the straight curve. Okay, straight road. So this is the main funda. Now today's topic is what? We will learn attainment of super elevation, how we are attaining. Okay, different methods are there, how we are attaining extra widening. Okay, and this is your small numerical on design of super elevation. I think you all have gone through that chapter, right? That is your design of super elevation. Okay, we will discuss one problem, similar type of problem also. As this topic is very small topic, that's why I have given numerical. See, method of attainment of super elevation. There are mainly 2 types. First is called what? It is called elimination of crown method. See, crown means what? Anyone? What do you, I think you have heard about this word, crown. What do you understand by this word, crown? Where you have heard about this crown word? Rotate ekdom upore top side. Exactly. Crown means what? It is your mukut, right? Mukut type. It should be at the head of your, it should be on the head. Similarly, on the head of the pavement, ekdom on the top, okay? There will be one point, that point is called crown. Now we have to eliminate that crown slowly in order to attain our super elevation. Okay, how we will show you in the diagram. Another is what? Rotation of the pavement. And another, how we will provide this, how we will attain our super elevation is that we will rotate our pavement. Okay, we will rotate our pavement about some point. That point we will see what are those 2 points. Okay, see in this method there are 2 methods. Under this method there are 2 methods. What is that? Outer is rotated about the crown. Okay, and another is crown shifted outward.
I will show you the diagram, then it will be clear. See, outer is rotated about the crown. Just remember this term, okay? Then it will be more clear. Now another, under this also there are two methods. What is it? This is the rotation of the pavement. Now about some point, okay? So if the pavement is rotated above the central line, then this is this method, or if it is rotated above the inner edge, then this is that method, okay? Now let us see elimination of the first method, which I said, elimination of crown. See, there are two methods. As I said, one is your rotation about the crown, okay? Another is your crown shifted outward, or we can say diagonal crown method, okay? Now suppose this is your roadway cross section, okay? I said this is what diagonal crown method, मतलब कि ये crown तुम्हारा diagonally move करेगा, और it is said that crown shifted outward. Outward क्या है? If this curve, this is your inner edge, suppose this is your outer edge, right? So your in super elevation, what happens? Your outer edge will be a little bit raised than the inner edge, right? Suppose that raised point is somewhere here, okay? Suppose the super elevation is somewhere here, okay? That means what? We have to raise this outer edge from this position to this position. Now how we will raise that? So there are two methods, okay? Under this method there are two methods. Since we are eliminating the crown, that means we are removing the crown, okay? So the first method is what? We are shifting. How we are removing this crown? Now we will shift this crown. See, first it was here, now slowly our crown is here, okay? As we go, मतलब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उस तरफ परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, जैसे हम बढ़ेंगे हम लोग का क्राउन ऐसा शिफ्ट होता होता जाएगा, ओके? वो एक ही जगह पे नहीं है. दिस इज नॉट एट द सिंगल क्रॉस सेक्शंस, ओके? दिस आर एट द सेवरल क्रॉस सेक्शंस, मतलब कुछ कुछ डिस्टेंस के अपार्ट में ये क्रॉस सेक्शंस हम सुपर इम्पोज करके दिखा रहे हैं यहाँ से. तो पहले ये वाला था, मतलब जहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेट रोड है, ठीक है? अब स्लोली ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो रहा है, तो तुम्हारा क्राउन क्या होगा? स्लोली शिफ्ट हो गया, ठीक है? फिर से थोड़ा शिफ्ट हो रहा है. देखो, नाउ दिस क्राउन इज व्हाट? दिस इज द क्राउन, इट इज मूविंग आउटवर्ड. देखो स्लोली इट इज मूविंग आउटवर्ड. तो अब जाके तुम्हारा ये सुपर एलिवेशन पूरा अचीव कर रहा है. सो इन दिस वे वी कैन प्रोवाइड सुपर एलिवेशन, वी कैन अटेन सुपर एलिवेशन, ओके? लेकिन बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा बोलो तो? what problem you will face? अगर ऐसा रहेगा तो तुम्हारा व्हीकल यहाँ पे है, ओके, राइट? इन दिस कंडीशन योर व्हीकल विल बी ओके, इट विल नॉट ओवरटर्न, ठीक है? अब ऐसा वाला पेवमेंट का क्रॉस सेक्शन अगर हो जाएगा तो तुम्हारा पेवमेंट और ऐसा ढीला हो जाएगा, राइट? देखो इस तरफ टर्न कर रहा है. ऐसा कंडीशन में क्या हो जा रहा है? फिर से ये अगर तुम्हारा पेवमेंट यहाँ पे खड़ा है तो क्या होगा? ये गिर जाएगा, राइट? गिर जाएगा. अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग? नेगेटिव सुपर एलिवेशन आ जा रहा है, ठीक है? नेगेटिव मतलब कि ये पूरा उल्टा ही गिर जा रहा है, ठीक है? मतलब इस तरफ ढलने के गाड़ी it should be tilted towards the inner edge, but now it is tilting towards the outer edge in this method, okay? So this is one drawback कि negative super elevation होता है, इसलिए generally ये adopt नहीं करता है, okay? लेकिन ये भी एक टाइप है, एक काइंड है, जैसे हम अटेनमेंट कर सकते हैं सुपर एलिवेशन को, ओके? नाउ लेट अस गो टू द सेकंड मेथड. ये देखो, दिस इज व्हाट? वी आर एलिमिनेटिंग द क्राउन, मतलब भी हम क्राउन को पकड़ के कुछ काम कर रहे हैं, राइट? क्राउन को, इसीलिए इसको शिफ्ट कर दिया आउटवर्ड में, इसलिए इसका नाम है डायगोनल क्राउन और क्राउन शिफ्टेड आउटवर्ड. अब दूसरा मेथड क्या है? देखो, दिस इज द रोटेशन अबाउट द क्राउन, मतलब क्राउन को फिक्स्ड रख के हम अब पेवमेंट को रोटेट करेंगे, आउटर एज को रोटेट करेंगे. देखो, आउटर एज रोटेटेड अबाउट द क्राउन, मतलब कि इसको फिक्स पकड़ के अब तुम यहाँ से देखो ये वाला फिक्स्ड हो गया, इसको हम मूव कर रहे हैं, ये आउटर एज को ऊपर उठा दे रहे हैं. अब थोड़ा दूर गए, ट्रांजिशन कर्व की तरफ गए, फिर से उठा दिया, ठीक है? फिर से ऐसे करके फाइनली हम ऐसा एक एलिमेंट क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन एंड अप कर रहे हैं, राइट? वी आर अटेनिंग आवर सुपर एलिवेशन. लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें भी ड्रॉबैक ये है, व्हेन आवर पेवमेंट विल बी इन दिस लाइक दिस वे, मतलब कि तुम्हारा ये वाला पोर्शन ऐसा स्टैंड स्टिल है, मतलब पूरा लेवल है, और ये वाला ऐसा कैम्बर थोड़ा सा है, ठीक है? तुम्हारा गाड़ी इट विल बी स्ट्रेट हियर, इट विल बी हियर, ओके? तो इस वाले केस में प्रॉब्लम क्या होगा बोलो? व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? अगर तुम्हारा पेवमेंट ऐसा रहा, ऐसा क्रॉस सेक्शन रहा, मतलब ये वाला पूरा लेबल्ड है, तो प्रॉब्लम क्या होगा?
ड्रेनेज। एग्जैक्टली हम लोग क्राउन Yes, हम ma'am. लोग Drainage. camber, why we are providing camber, we are providing minimum slope so that there will be some drainage facility, मतलब जो भी बारिश का पानी आएगा या जो भी आएगा वो ड्रेन होके निकल जाए। लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आके पानी जमना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो दिस इज वन ड्रॉबैक ऑफ दिस रोटेशन। ओके ओके, अब हम एक एग्जांपल तुमको दिखाएंगे, तो वहां पे देखना ये वाला मेथड फॉलो किया है कैसे। ये तो हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन को सुपर इम्पोज करके दिखा रहे हो, वहां पे तुम्हारा पूरा 3D में दिखाएगा, ठीक है, कि कैसे हो रहा है। अब दिस इज द फर्स्ट मेथड, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन। देखो हम क्राउन को ही उड़ा दिया पूरा, देखो क्राउन को ही उड़ा दिया, राइट। अब आता है दूसरा क्या, रोटेशन ऑफ द पेवमेंट, राइट, रोटेशन ऑफ द पेवमेंट अबाउट समथिंग, अबाउट सम पॉइंट। सो एक है कि अबाउट द सेंटर लाइन और दूसरा है अबाउट द इनर एज। इजी है, कुछ नहीं है। देखो अबाउट द सेंट्रल लाइन के, देखो ये सपोज दिस वाज योर पेवमेंट स्ट्रक्चर, ऐसा था, इसका सेंटर ये है। अब इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा ऐसा रोटेट कर देंगे। मतलब कि क्या है कि हम यहाँ पे कुछ फिलिंग कर देंगे, माटी लेकर यहाँ पे फिल कर देंगे, पेवमेंट को थोड़ा उठा देंगे और इस तरफ हम कट करके पेवमेंट को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, राइट। सो ये क्या हो जा रहा है, ऐसा टिल्टेड हो जाएगा पेवमेंट। तो स्लोली स्लोली हम करते जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक ना तुम्हारा दिस इज E/2 E/2। सो नाउ व्हाट इज द फुल सुपर एलिवेशन नया पेवमेंट का, अगर ये वाला तुम्हारा नया पेवमेंट है तो E/2 प्लस E/2, दिस इज द फुल सुपर एलिवेशन। देखो दिस इज वाज योर इनर एज और ये है आउटर एज, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब हेलो मैम, सुनाई नहीं दे रहा। एक्सट्रीमली सॉरी, करंट चला गया था। ओके ओके मैम। क्या होता है यहाँ पे, तो अच्छा स्क्रीन, ओके सी तरीका। ओके, सो as I said, your rotation will be, this is your rotation about the central line, ठीक है। ऐसा ऐसा करके देखो ये रोटेशन होगा। दिस इज नाउ न्यू आउटर एज, दिस इज नाउ न्यू इनर एज। तो कितना तक करना है, इफ सेंटर लाइन होगा तो दिस विल बी E/2 E/2, मतलब E/2 ऊपर उठाएंगे और E/2 नीचे हम कट करेंगे, राइट। सो टोटल विल बी व्हाट, टोटल विल बी योर कैपिटल E। ओके, तो टोटल हाइट विल बी व्हाट, एज, आउटर एज और इनर एज के बीच का हाइट, दिस प्लस दिस विल गिव यू E। ओके, अब इसका एडवांटेज क्या है, सी एडवांटेज इज व्हाट, तुम यहाँ से जितना काटोगे, ये क्या है, पेवमेंट को नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, राइट। नीचे की तरफ मतलब हमको ये जो लेवल था उससे नीचे की तरफ शिफ्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, माटी को काटते काटते जाना पड़ेगा। अब हम, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऊंचा उठा देना है, हाफ ऑफ द पोर्शन को ऊपर उठाना है, हाफ ऑफ द पोर्शन को नीचे गिराना है। तो यहाँ से जो भी कटिंग हो रहा है, माटी जो भी निकल रहा है, अर्थवर्क जो भी हो रहा है, वी कैन इजिली यूज दैट फॉर बैंकिंग, राइट।
कटिंग को हम यहाँ पे फील कर सकते हैं. सो दिस इज द एडवांटेज कि तुम्हारा जो भी यहाँ से कटिंग हो रहा है वो हम लोग खुद यूज कर रहे हैं यहीं पर, राइट. दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि ड्रेनेज प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ काटते जा रहे हैं, वो ये है तुम्हारा एक्चुअल सरफेस लेवल, ठीक है. अब जैसे जैसे हम नीचे काटते जाएंगे तो क्या होगा, नीचे तो ग्राउंड वाटर आना स्टार्ट करेगा, राइट. रीच ग्राउंड वाटर है तो नीचे जैसे जाएगा तुम्हारा ये ग्राउंड वाटर में टच करता स्टार्ट करेगा. सो अल्टीमेटली एज आई सेड वाटर इज हार्मफुल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो सकता है ड्यू टू ग्राउंड लेवल, ठीक है, ड्यू टू अंडरग्राउंड वाटर टेबल के बदले, ठीक है. नाउ रोटेटिंग अबाउट द इनर एज. सी रोटेटिंग अबाउट द इनर एज ऐसे सिंपल, दिस इज द इनर एज, दिस इज द आउटर एज. अब इसको पकड़ के तुम रोटेट करो, पेवमेंट के उठा दो, ठीक है. ऐसे उठा दिया, फिर ऐसे उठा दिया और अल्टीमेटली उसका फुल अटेनमेंट हम कर दिए, ठीक है. सो टोटल ई इज द टोटल एज. आउटर एज कितना ऊपर उठा इनर एज से, दिस इज योर इनर एज, आउटर एज से टोटल डिस्टेंस इज ई. एडवांटेज क्या है, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम. जैसे कि ये वाला क्या है, इसी के ऊपर से हम सिर्फ बैंकिंग करते करते जा रहे हैं, मतलब वी आर ओनली फील करते करते जा रहे हैं, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं जा रहा, मतलब ग्राउंड लेवल के नीचे जा ही नहीं रहे हम लोग. सो वहाँ पे तुम्हारा ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है. लेकिन एक्स्ट्रा क्या है कि एक्स्ट्रा तुमको बाहर से माटी को अर्थवर्क लेकर यहाँ पे फिलिंग के लिए डंप करना पड़ेगा, जिससे कि ये लोअर अल्टीमेटली क्या ऐसे फिल करोगे तो माटी तो देना पड़ेगा नीचे, राइट. तो बैंकिंग के लिए क्या करने का, एक्स्ट्रा मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड, तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है. ओके, सो दिस आर द मेथड्स. तो फर्स्ट मेथड एज आई सेड was your crown elimination and this is the rotation of the pavement, ठीक है. क्राउन एलिवेशन में दो है, एक है टुवर्ड्स आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट कर देना है, डायगोनल क्रॉस मेथड, इसको बोलते हैं क्राउन मेथड, ठीक है. और एक को बोलते हैं रोटेशन अबाउट द क्राउन, ये है. और इसका क्या है, दिस इज रोटेशन ऑफ द पेवमेंट अबाउट द सेंटर एंड रोटेशन ऑफ द पेवमेंट अबाउट द इनर एज. ये याद रखना है तुम लोग को, ठीक है. तो प्रॉब्लम में अगर दिया रहेगा अबाउट द सेंटर या अबाउट द इनर एज, इन फ्यूचर ट्रांजिशन कर जब हम बनाएंगे तब ये वाला e/2 होना चाहिए, कहाँ पे e होना चाहिए ये याद रखना है. ओके, तो अबाउट द इनर एज का मतलब भी हो जाएगा e/2 कंसीडर करना है यहाँ पे e. ओके, अब देखो ये है तुम्हारा वो जो 3D हम बोले थे, दिस इज व्हाट. ये डायग्राम देखकर क्या लग रहा है, ये कौन सा मेथड फॉलो करके ये सुपर एलिवेशन अटेम्प्ट कर रहा है. ये वाला डायग्राम देखो, पहले ऐसा था क्रॉस सेक्शन, अब जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ रहे हैं अब क्या हो रहा है, ये थोड़ा ऊपर उठ गया. ये वाला फिर से देखो, ये वाला पूरा ऊपर फुल अटेनमेंट हो गया, ऊपर उठ गया, ये कांस्टेंट है. अब धीरे धीरे फिर से कम होता जाएगा, ये स्ट्रेट हो गया इस वाला रास्ता, और ये वाला अब कैम्बर दे दिया है. व्हाट इज दिस मेथड, क्राउन मेथड है, ठीक है. एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मेथड है, उसमें दो मेथड बोले थे, ये दोनों में से कौन सा है, दिस इज, सी वी आर रोटेटिंग, राइट, वी आर रोटेटिंग द आउटर एज अबाउट द क्राउन. क्राउन मतलब ये वाला फिक्स पोर्शन है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स है, सिर्फ ये वाला पोर्शन हम रोटेट कर रहे हैं, राइट. आउटर एज को सिर्फ उठा दे रहे हैं अबाउट व्हाट, अबाउट द क्राउन. इसको बोलते हैं रोटेशन. सी आउटर एज रोटेटेड अबाउट द क्राउन एंड दिस इज व्हाट एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मेथड. तो ऐसे सुपर एलिवेशन हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है. और जो हम लोग सुपर एलिवेशन यहाँ पे जो डायग्राम दिखाए थे वो क्रॉस सेक्शन कुछ नहीं, इसको सुपर इम्पोज कर दे इसके साथ, फिर इसको इसके साथ सुपर इम्पोज তোরা শুনতে পাচ্ছিস কেউ? আরে ম্যাম লেফট করেছে, আসছে, দাঁড়া নেটওয়ার্ক।
ओह सॉरी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ मैम। Okay, see now this was your super elevation, attainment of super elevation. Okay, now okay, ये क्या है? अटेनमेंट ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ये इजी है, उतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये केस याद करना है, ठीक है। एक है कि अगर रेडियस बहुत ज्यादा है, मतलब कर्व का रेडियस बहुत ज्यादा, मतलब क्या, ये कर्व बहुत बड़ा है, राइट, तब क्या हो जाएगा, तब तुमको उतना एक्स्ट्रा वाइडनिंग का झंझट देने का जरूरत नहीं है, सो नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है, लेकिन इट शुड बी अबव 300 मीटर। ओके, दूसरा क्या है, इफ आवर रेडियस ऑफ द कर्व लाइज बिटवीन दिस वन 50 to 300, देन एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या हो जाएगा, टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज WE, ठीक है। तो अब देखा है कैसे उसको हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे WE/2 देना है, यहाँ पे WE/2 देना है, सो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या हो जाएगा, WE/2, WE/2 will be WE. See, the extra widening will be WE/T must be provided on both outer edge and inner edge in this condition. ठीक है। अगर बहुत शार्प कर्व हुआ, बहुत शार्प कर्व मतलब बहुत छोटा रेडियस है, राइट, इसका रेडियस अगर इट लाइज बिलो 30 मीटर, जैसे ऑन शार्प हिली कर्व, राइट, तब क्या करना है, तब हमको एक्स्ट्रा वाइडनिंग, फुल एक्स्ट्रा वाइडनिंग देना है, बट इट शुड बी प्रोवाइडेड ओनली इन द इनर एज, मतलब आउटर एज में नहीं, इनर एज में हम देंगे। जैसे यहाँ पे था पूरा इनर एज आउटर एज में हाफ हाफ करके दे दिया, तो टोटल विल बी WE, लेकिन पूरा WE हमको इनर एज में देना है। सो दिस इज द केस फॉर एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ओके, एंड दिस इज एज पर IRC यहाँ पे दिया गया है, देखो ये से आता है, दिस इज योर स्ट्रेट कर्व, दिस इज ट्रांजिशन, दिस इज योर सर्कुलर, फिर ट्रांजिशन, फिर स्ट्रेट। देखो ट्रांजिशन से जैसे जैसे स्ट्रेट से जैसे स्टार्ट हो रहा है ट्रांजिशन, तुम्हारा विथ इज सेम, ठीक है। अब यहाँ पे जाके क्या आ रहा है, फुल एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकाल देना है, मतलब पहुंच जाना चाहिए, मतलब WE/2 यहाँ पे और WE/T फुल हो जाना चाहिए। ओके, अब ये थ्रू आउट द कर्व इट विल बी सेम, मतलब टोटल विथ थ्रू आउट द कर्व विल बी W + WE/2। ओके, अब ट्रांजिशन कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पे मैक्सिमम WE/2 होगा, स्लोली स्लोली जैसे स्ट्रेट में रीच करेंगे, योर एक्स्ट्रा वाइडनिंग शुड बी रिड्यूस टू 0। तो देखो यहाँ से कम होते होते 0 में आए, यहाँ से कम होते 0 में आके ऑलरेडी स्ट्रेट का जो विड्थ था, ओरिजिनल विड्थ ऑफ द पेमेंट था, वही अटेंड करना है। देखो स्ट्रेट में WE है, फिर यहाँ पे WE, ये दोनों होगा, थ्रू आउट द कर्व इट विल बी दिस वन, फिर ट्रांजिशन में चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन का मतलब वही है चेंज, स्ट्रेट में W, और इसमें भी वैसा ही, देखो यहाँ पे 0 होगा, ट्रांजिशन कर्व जहाँ पे खत्म हुआ, सर्कुलर कर्व जहाँ पे स्टार्ट हुआ, वहाँ पे फुल अटेनमेंट हो जाना चाहिए WE, फिर थ्रू आउट द कर्व, सर्कुलर कर्व इट विल बी सेम, WE रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो रहा है, WE मैक्सिमम होगा, अब जैसे जैसे स्ट्रेट कर्व में जाएगा, स्ट्रेट रोड में जाएगा, वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर एवरीवन? सो हेलो, यस मैम। ओके, सो दिस इज द टू, मतलब ये जो है अटेनमेंट ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। ओके, अब थोड़ा टाइम है तो लेट अस डू वन प्रॉब्लम। ओके, बहुत टाइम है, आधा घंटा 20 मिनट टाइम। आई थिंक तुम लोग तो ये किए हो, ये वाला प्रॉब्लम करके बैठे हो। सिमिलर प्रॉब्लम हम फिर से दे रहे हैं, डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। ओके, इसको तुम लोग सरप्राइज टेस्ट भी बोल सकते हो, हम बोले नहीं आज कुछ कराएंगे। ओके, तो सी हियर, डिजाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, ये याद रखना, डिजाइन है ये वाला, ये पिछले वाला लेक्चर से है, ठीक है। So design the rate of super elevation for a horizontal curve of radius 500 and speed of v दिया, कैपिटल V दिया है 100 km/h। So given value is what? V is given, उसका small v निकालो। This is the formula for design of super elevation, E plus F equals to v²/gr। ठीक है, तो V हम ऑलरेडी निकाल दिए हैं, R is 500 मीटर। Now बोला है डिजाइन करो। So what is the first step of the design? Anyone बोलो। बहुत सारा स्टेप था, 5 स्टेप्स था, तो फर्स्ट स्टेप क्या था? What was the first step? Anyone? याद नहीं है? मैम फ्रिक्शनটাকে 0.15 ধরে করতে হবে। ना 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 ना, there will be no friction। फर्स्ट में फ्रिक्शन should be 0 and V should be considered as 75% of design speed। याद आ रहा है? V क्या था? ये V का हो जाएगा 0.75
ऑफ v हो जाएगा ये वाला, और ये वाला 0 हो जाएगा। फिर e निकालो, फर्स्ट स्टेप करो, बोलो e का वैल्यू कितना आ रहा है। See, this is the first step. Find e for 75% of design speed, neglecting f. That is putting f equals to 0 in this equation and v equals to 0.75 v, where v is in small letter. मतलब ये 27.7. e का वैल्यू निकालो। याद आ रहा है ना सबको ये मेथड? पिछले क्लास में तो किए थे, मतलब पिछले के पिछले में, पिछले तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग था। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? पॉइंट 77। 0.77 नहीं तो 0.89 आ रहा है। मैम मेरा 0.77 है। बाकी लोग का 0.089 आ रहा है। v क्या लिया? f must be 0, v should be 75%, मतलब 0.75 ऑफ 27.7 होना चाहिए ये वाला v फर्स्ट स्टेप में। अभी जो किए हो, कौन किए हो बोलो? तुम वो किए हो 75% पकड़ के किए हो? मैम 75% ऐड नहीं किया है। हाँ वो तो करना है ना फर्स्ट में स्टेप में। ओके मैम। कारोल की 0.089 एसएच है? किसी का आया है 0.089? यस मैम 0.0884 माने 0.08। ओके ओके 0.088। ओके नाउ टेल मी, इज इट ओके और सेफ है कि नहीं है? सेफ মানে e का वैल्यू मैक्सिमम 0.07 এর বেশি আছে। हाँ, सो दैट इज द मैक्सिमम हम लोग 0.07 ही प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ मैम, लेकिन हम लोग का आ रहा है कितना? 0.089। तो वो फुल मतलब क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पूरा टैकल नहीं कर पाएगा। इतना चाहिए था हमको सुपर एलिवेशन, तभी वो टैकल कर पाएगा, राइट? लेकिन हम मैक्सिमम इतना ही दे सकते हैं 0.07 ही। तो अब रिमेनिंग कौन टैकल करेगा? रिमेनिंग विल बी टैकल बाय, इनिशियली हम तो फ्रिक्शन दिए ही नहीं थे, ठीक है? अब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? अब हम फ्रिक्शन को भी ऐड कर देंगे। ओके, सो योर थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप विल बी व्हाट? Here E is greater than 0.07, that means it is not safe. So we can provide only maximum value of E, which is 0.07. उसके बाद हम लोग स्टेप 3 में जाएंगे। ओके, नाउ सी व्हाट इज स्टेप 3? क्या था स्टेप 3 था? फाइंड F फॉर द डिजाइन स्पीड। अब V विल बी तुम्हारा डिजाइन स्पीड ही कंसीडर करना है, नॉट द 75%। ओके, एंड मैक्सिमम एंड टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, मतलब कि E का मैक्सिमम कितना है? 0.07 ही हम दे सकते हैं। अब V पकड़ेंगे 27.7, E पकड़ेंगे 0.07, फाइंड F। अब हमको फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। अब देखो फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा सेफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? What is the value of F? 0.087। 0.087। अब बोलो ये सेफ है कि नहीं है? What should be the what is the maximum value of F? If मतलब lateral friction का maximum 0.15, which is lesser than 0.15 जो तुमने कैलकुलेट किया है। Okay, so let us see what is the calculation. 0.087, very good, which is less than 0.15। मतलब कि तुम ये वाला इजीली दे सकते हो, मतलब इतना दे के तुम अब टैकल कर पाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। मतलब इतना सुपर एलिवेशन और इतना फ्रिक्शन अगर दोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इजीली टैकल्ड, राइट, फॉर दिस डिजाइन स्पीड। तो हेंस आवर डिजाइन इज व्हाट? इट इज सेफ। सो नो नीड टू गो फर्दर स्टेप में जाने का जरूरत है और नहीं, क्योंकि हमको तो जितना चाहिए था उतना F तो मिल ही गया है विद इन द लिमिट 0.15। सो वी शुड नॉट गो फॉर द स्टेप 3। सो व्हाट इज आवर E वैल्यू? 0.07, right?
मतलब हम लोग डिजाइन कितना किए थे, मैक्सिमम हम इतना ही दे सकते थे। एक्चुअली हमको आया था कितना 0.089, लेकिन हम मैक्सिमम इतना ही दे सकते 0.7। अब वो देकर एक्स्ट्रा फ्रिक्शन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज 0.087। ओके, नाउ दिस इज द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। अगर हम बोलेंगे फाइंड कैपिटल वैल्यू, कैपिटल ई वैल्यू, तो कैसे निकलेगा कैपिटल ई का वैल्यू, मतलब कितना, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। ई है परसेंटेज में, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है, राइट। तो कैपिटल ई इज व्हाट, कितना हमको आउटर एज उठाना पड़ेगा कंपेयर टू द इनर एज, दैट डिस्टेंस इज द कैपिटल ई, right? Now how we will calculate capital E using this small e value? Yes ma'am. क्या इसमें बोलो, पूछ रहे हैं। This is your E, right? Suppose this is your width of the pavement, B. Okay? Right? अब E का हम लोग का फॉर्मूला क्या था, E इज योर tan थीटा। ये अगर तुम्हारा थीटा राइज है एंगल, ठीक है, E इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। वेयर tan थीटा इक्वल टू क्या है तुम्हारा, सपोज दिस इज L, ये डिस्टेंस है L, ठीक है, ये है तुम्हारा सुपर एलिवेटेड रास्ता, ठीक है, तुम्हारा गाड़ी इस तरफ परपेंडिकुलर में जाएगा। और इसका विड्थ कितना है, रास्ता का विड्थ है B, ठीक है। अब बोलो E इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या है, E बाई L लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकते हैं। Yes ma'am. फॉर थीटा बीइंग स्मॉल हम क्या बोले थे, sin थीटा विल बी इक्वल्स टू tan थीटा बोले थे, राइट। फॉर थीटा बीइंग स्मॉल वी कैन राइट दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, ठीक है। इसको हम लोग अब sin थीटा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग अब sin थीटा भी लिख सकते हैं। अब बोलो sin थीटा इक्वल्स टू क्या है, sin थीटा इक्वल्स टू क्या है, यूजिंग दिस ट्रायंगल, ये थीटा है, ठीक है, Perpendicular by hypotenuse. यस दैट इज E बाय B, राइट, E बाय B है ये वाला, राइट। अब L की जगह तुम्हारा B आ गया है, तो रिलेशन क्या है इन दोनों का, E इज इक्वल्स टू कैपिटल E बाय B, ठीक है। तुम्हारा E आया कितना, तुम्हारा E आया है 0.07, क्योंकि ये सेफ हो गया, यहाँ पे सेफ हो गया f का वैल्यू, मतलब दिस इज योर आंसर, E इज इक्वल टू 0.07 इज योर आंसर, ओके। अगर हम बोलेंगे कि तुम्हारा 2 लेन रास्ता है, 2 लेन रास्ता है, सो व्हाट इज द B वैल्यू देन, विड्थ ऑफ द पेवमेंट क्या होगा, अगर इफ इट इज 2 लेन रोडवे, एक लेन का विड्थ कितना होता है, एक लेन का विड्थ, अगर ऐसा रास्ता है, दिस इज अ सेंट्रल लाइन, एक लेन का विड्थ कितना होना चाहिए एज पर IRC, 3.5 3.5 मीटर, राइट। तो 2 लेन हम बोले हैं, तो 2 लेन का क्या होगा, तो ये भी 3.5 मीटर है, राइट, ये भी 3.5 है, सो टोटल विल बी योर 7, B विल बी योर 7 मीटर। तुम्हारा डिजाइन हो गया E का वैल्यू, तो हम पूछ रहे थे कि ये E कितना होगा, मतलब व्हाट इज द राइज इन द आउटर एज, मतलब आउटर एज का कितना सुपर एलिवेशन दे रहे हैं हम, सो कैपिटल E विल बी स्मॉल e into B, ओके। दैट मीन्स अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो ऐसे करना है, हम बता दे रहे हैं, सॉल्व नहीं, हम वैसे न्यूमेरिकल नहीं, हाँ ठीक है, 0.49 मीटर, राइट, मतलब 7 मीटर में है इसलिए ये भी मीटर में होगा। तो ऐसे हम लोग E का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो E इज इन डिस्टेंस, E ये वाला E क्या है, दिस इज द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। आई थिंक क्लियर, राइट, डाउट नहीं है ना, ओके। यहाँ पे कोई तुमको दिया नहीं है, ओके। In this problem only we have to design this super elevation only. See here, f is greater than 0.15, lesser than 0.5, so design is safe, therefore provide super elevation of 0.07. This is rate of super elevation. Okay then, I think all of you have solved the problem, right? Now please, Yes ma'am. दो जो यहाँ पे हो वहाँ पे जाके अटेंडेंस जल्दी दे दो, ठीक है, मतलब डेट से मत देना, हमको अटेंडेंस लिस्ट निकालना पड़ता है। यस मैम, अभी दे रहा हूँ। ओके, 29, हाँ कैंपस में नाम भी लिख दिया। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। तो तुम लोग अब जा सकते हो यहाँ से, तुम लोग अभी क्लास होगा दूसरा, ठीक है। हाँ मैं इसके साथ, हाँ ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।